Hello, मैं अभिजीत रॉय and today we are going to see the concept of electrical charges and its field. Okay, so this is the first chapter of your NCERT book of class 12, right? So let us start with this and see what it basically deals with, right? So first of all, you need to understand what is this charge, and then we are going to see what is the field, how these charge and field are associated with each other. So this is our main concept that we are going to see over here as far as your charges are concerned, right? So first of all, we are going to discuss a very important term called an electrostatic, right? We are going to discuss a term which is called electrostatic. So when you talk of an electrostatic, right, there are two things that is involved inside this. One is called an electro, another one is called static. So we are going to see the electro comes from the term called electrons, whereas the static means at rest. मतलब कोई भी बॉडी जो रुकी हुई स्टेट पे है, लेकिन हम यहाँ पे कोई भी बॉडी नहीं लेंगे. हम यहाँ पे क्या लेंगे? We are going to talk of only the charge. So anywhere where the charge is not moving, it is at rest, right? And we are going to see the various phenomena due to these charges, and basically let me tell you, we are going to study three phenomena associated with the charge, and one is called the force associated with the charges. Second one is nothing but the electrical field associated with the charges, and the third one is nothing but my potential associated with these charges. So ये तीन चीज आपको देखनी है whenever we are studying about electrostatic, right? So it deals with the study of force, right? Force, field, potential rising from the static charges, रुकी हुई charges, charges at rest, okay, of charges at rest, that is already there, okay? So charges of rest, इसको देखनी है आपको, और इस charges of rest का ये तीन phenomena को basically we need to analyze, okay? Right. One more thing you need to know, अभी तक हमने वो डिस्कस नहीं किया कि एक्चुअली चार्ज क्या है, right? Electrostatic is a different field basically, and when you talk of a charge, that is a different thing. Now what is basically a charge, right? So let us see this. So we all know, I am not saying what is positive charge, what is negative charge. So कोई भी student से जब हम पूछते हैं what is charge, they will say positive charge, negative charge. No, those are the type of charge. I am not asking about type of charge. I am asking what is charge. So that is the main issue over here. So what is charge? Now let me tell you, you all know what is electromagnetic waves, right? So in an electromagnetic field basically, if you put an object, right? If you put an object, and if that object is facing some amount of force in it or not, this you are going to see. So what we have? We have electromagnetic field. Inside that you put an object. So once you put an object, what we find is that object starts moving or object changes its location. If this happens, that means a certain amount of force is exerted on that object. Right? So therefore what the big conclusion is, whenever you have an electromagnetic field and in that if you put a charge, it will always experience a force, right? So remember this property, and this is how we basically define what is basically a charge. If that body doesn't experience any force, that means it doesn't have charge in it, okay? So if at all it has a charge, then definitely it will experience some amount of force, right? Therefore the first thing we are going to study over here is nothing about the force, right? So we are going to study force, and from that force, if you don't know force, then you can't calculate electric field, right? And from that field we go to the potential, right? So step by step, one other are always, all these three things are basically interlinked, okay? And how they are interlinked and in what fashion they are interlinked, ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी. So charge एक बहुत important phenomena है. तो फिर से मैं एक बार बताता हूँ. Just one single line. If you place a charge in an electromagnetic field, it will experience a force. That's it. Okay? अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में चार्ज को रखते हो तो वो उसे एक फोर्स मिलेगी. अगर नहीं मिलती है तो it is uncharged. It is uncharged, right? So ये एक बेसिक थिंग था इसके बारे में, okay?
So the physical properties of a matter that causes to experience a force when placed in an electromagnetic field is called electric charge. सर ये बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने लिखा है इसको, द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, राइट, कोई भी फिजिकल प्रॉपर्टी है दैट कॉजेज टू एक्सपीरियंस अ फोर्स, देखिए उसमें फोर्स लगनी चाहिए, राइट, व्हेन इट एक्सपीरियंसेस व्हेन इट इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड अ इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज. इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, right, it's a scalar quantity. So remember this point, charge is nothing but a scalar quantity. We are only interested over here what is the magnitude. We are not interested charge की दिशा क्या होती है, डायरेक्शन क्या होती है, right, we are only interested in magnitude. Okay, so ये एक खास बात है इसका कि हम चार्ज एक्चुअली है क्या, राइट. अब थोड़ा सा हम ग्राफिक, थोड़ा सा हम इसको आपको दिखाना चाहते हैं कि देखिए हाउ डू यू बेसिकली रिप्रेजेंट दिस क्राइटेरिया ऑफ चार्ज, राइट. To represent a charge, we basically show it in two ways. One is called the positive charge and another one is called a negative charge, right? But how they come? That's the question, right? How they come? So you see, if you are looking at this diagram, just have a look. If I have taken this positive, अगर मैं इसको positive लेता हूँ, इसका मतलब ज़रूर कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन इससे बाहर गई है. सो वेन एवर द इलेक्ट्रॉन्स आर थ्रोन अवे, जब हम इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकाल देते हैं तब वो चीज़ जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है वो हमारी पॉजिटिव चार्ज हो जाती है. लेकिन जब आप इलेक्ट्रॉन को लेते हो, आप नहीं बोलेंगे बेसिकली जब कोई ऑब्जेक्ट इलेक्ट्रॉन को लेता है, इन दैट केस वी आर गोइंग टू से कि इट हैज़ अक्यूर्ड सम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड देयरफॉर दैट इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अ नेगेटिवली चार्ज, द फिजिकल मीनिंग. ओके, सो इसलिए चार्ज हमारे पास दो तरह की होगी, एक वो जिसमें इलेक्ट्रॉन आती हैं और एक वो जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलती हैं. सो वी विल हैव टू टाइप्स ऑफ चार्जेस, राइट. सो वन पॉजिटिव, अनदर वन इज नेगेटिव. Okay, now based on this positive and negative charges we will have the laws of the charge, and the laws of the charge you know बहुत दिनों से आप सुनते आए हो. Positive charges attract, right, by you can say like charges attract or opposite charges repel, right. So that means let's take this. So if you have positive, there will be definitely an attraction between them. There will be an attraction between them. If you take negative, then there will be again an attraction. So what we say these two are the condition of like charges. So these are like charges. So एक जैसे हैं दोनों, इसलिए like charges, right? लेकिन अगर ये opposite charges होती हैं, तो in that case unlike charges. So you say unlike means if I am going to take positive, this is negative, this is unlike, right? If you take unlike charges, then there will be a repulsion. Now look at this, there will be a repulsion. Okay, so ये एक लॉ है, राइट, चार्ज का लॉ है, एक चार्ज की दुनिया है. और उस चार्ज की दुनिया में दो चीज़ देखा जाता है कि अगर लाइक चार्जेस हो, प्लस प्लस माइनस माइनस, लाइक आई हैव शोन इट ओवर हियर, तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे और अपने तरफ खींचेंगे. लेकिन अगर ऑपोजिट वाली होती हैं तो वो एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, वो रिपेल करेंगे, राइट. सो ये फिनोमिना को आपको देखनी है. द इंटरेस्टिंग पॉइंट ओवर हियर इज कि आपको अब ये जाननी पड़ेगी, सर एक तरफ तो अट्रैक्शन है, दूसरी तरफ रिपल्शन है, इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये दोनों ही फोर्स है. सो अगर आप अट्रैक्शन की बात करो, अट्रैक्शन इज अ फोर्स. अगर आप रिपल्शन की बात करते हो तो रिपल्शन इज ऑल्सो ए फोर्स. तो इसका मतलब ये कंडीशन हो लाइक वाली या अनलाइक वाली, आपकी एक चीज़ श्योर है और वो चीज़ ये है कि दोनों के बीच में फोर्स तो ज़रूर आएगी, राइट. दोनों के बीच में फोर्स तो ज़रूर आएगी. ओके, और यही फोर्स, राइट, इसी फोर्स के बारे में मैं आपको यहाँ पे डिस्कस किया था. लुक ओवर हियर, द फर्स्ट थिंग यू विल गेट इज फोर्स. और यहाँ पे आप देखो, आप यहाँ पे भी मैंने लिखवाया, यहाँ पे देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ फोर्स. तो फोर्स को देखो आप, तो हियर कम्स द कंसेप्ट ऑफ फोर्स. तो यहाँ पे फोर्स किस चीज़ का? दो चीज़ का, अट्रैक्शन, रिपल्शन, एंड लाइक चार्ज, अनलाइक चार्ज. ओके, सो ये है इसका मेन बात. ओके, सो बेस्ड ऑन दिस, राइट, इसी के ऊपर बेस करके नाउ आई हैव रिटन दिस इन अ सिंपल लैंग्वेज. थोड़ी टाइपोग्राफिक एरर है इसमें. जस्ट लुक एट दिस. व्हेन इलेक्ट्रॉन इज टेकन, राइट, टेकन आउट ऑफ दैन ऑब्जेक्ट, इट अटेन्स पॉजिटिव चार्ज. I write it in this way, that is plus, right, positive charge.
and when electrons is gained, so is gained by the object, it attains negative charge. So this is the basic thing that we had just discussed कि पॉजिटिव कब होती हैं और नेगेटिव कब होती हैं. जब इलेक्ट्रॉन्स हम ले लेते हैं या फिर इलेक्ट्रॉन्स हम दे देते हैं, तो इन दो तरीके से इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान होती है और एज ए रिजल्ट राइट चार्ज इज क्रिएटेड. ओके, सो और ये चार्ज जब क्रिएट हुई, जैसे मैंने आपको बोला कि देखिए लाइक चार्जेस हमेशा क्या होगी, रिपेल. So light charges will always repel, unlike charges will always attract. So the same lines, okay? बदले में क्या मिली? Attraction, repulsion हमेशा एक तरह का फोर्स है, इसलिए हमें मिली फोर्स, और उस फोर्स से मिलती है हमें फील्ड, और उस फील्ड से हमें मिलती है पोटेंशियल, और उस फील्ड से हमें मिलती है पोटेंशियल. एंड देयरफॉर ध्यान देना आप, फोर्स देखिए इस फोर्स में E में और V में एक डिसिमिलैरिटी है और सिमिलैरिटी भी है, डेफिनेटली दीज टू हैव सिमिलैरिटीज, बट V सबसे अलग है, दोनों से अलग है, राइट? क्यों ये दोनों से अलग है? बिकॉज दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन मेरी जो V है, जो मेरी पोटेंशियल है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. मेरी V वेक्टर क्वांटिटी बिल्कुल नहीं है. क्यों नहीं है, विल डिस्कस लेटर ऑन, बट फॉर द टाइम बिंग मैंने ये जान के ये सिंबल्स लगाया है सो दैट यू कीप इट इन योर माइंड दैट फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, बट योर पोटेंशियल इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, राइट? सो इस तरह से हम ये एक चेन बनाया है कि इसी चेन के साथ हम पूरी चैप्टर्स को डील करेंगे, राइट? पूरे चैप्टर में हम इसी चीज के बारे में डील करेंगे. लेकिन इस चीज को डील करने के पहले मैं आपको दो चार चीज बताना चाहता हूं कि देखिए चार्ज एक्चुअली सिस्टम में आते कैसे हैं. हाउ कैन यू क्रिएट, मैंने बोला एक पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन बनाएंगे कैसे? यहां नेगेटिव चार्ज है, कैसे बनाएंगे, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट आई वांट टू शो यू, राइट? ये मेरे पास डायग्राम है, राइट? जस्ट हैव अ लुक. नाउ दिस इज द सेम, बोथ द डायग्राम्स आर सेम, यू कैन रेफर टू एनी वन ऑफ द डायग्राम्स. ओके, और ये देखिए आप, सो हियर इज द कंसेप्ट विच इज कॉल्ड इंडक्शन, राइट? आई होप यू रिमेंबर इंडक्शन. सिंपल हिंदी में इंडक्शन का मतलब है एक ऐसा काम करो जिसमें आप छुएंगे नहीं, यू विल नॉट टच इट, दैट इज इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, राइट? सो इंडक्शन मीन्स हवा से आ जाएगी लेकिन आप टच नहीं करोगे, दैट इज व्हाट इज इंडक्शन. सो हैव अ लुक. देखो आप, जब आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की आप बात करते हो, आप टच नहीं कर रहे हो, आप छू नहीं रहे हो, दैट इज व्हाट इज इंडक्शन. सो इंडक्शन ऑफ चार्जेस. ओके, एंड हियर आई हैव टेकन अ सिंपल स्फीयर, राइट, ऑन अ स्टैंड, एंड देन व्हाट आई डिड इज आई ब्रॉट अ नेगेटिव चार्ज. नाउ लुक ओवर हियर, आई ब्रॉट अ नेगेटिव चार्ज. और आपको पता है अगर एक तरफ नेगेटिव है तो दूसरी तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए देखिए आपका यहाँ पे पॉजिटिव हो गई है. नाउ लुक ओवर हियर, let me remove this so that it becomes clear, right? अब आप देखो, ये देखो आप, यहाँ पे आपकी ये अगर नेगेटिव है तो ये देखिए पॉजिटिव हो गई है आपकी, सो दिस बिकम्स पॉजिटिव. सो एक तरफ पॉजिटिव हो गई तो डेफिनेटली दूसरी तरफ क्या होगी, नेगेटिव. क्लियर? सो दिस इज माई फर्स्ट फिगर, सो दिस इज माई, refer to this as the first figure. It is written over there A, but I am writing it in bigger one, right? This is my third figure. Now look at the third figure. What I did, I made this negative to the grounded, right? I made this grounded, and as a result the entire negative charge goes to the ground and becomes zero. Entire negative charge goes to the ground and becomes absolutely zero. अगर आज ये zero हो जाती हैं तो और मेरे पास नेगेटिव नहीं बची, तो बिल्कुल खाली, nothing is there. एंड यहाँ देखिए आप, सो आप देखिए इस फिगर से जब मैं इस फिगर में गया कोई नेगेटिव चार्ज नहीं है और ग्राउंड को अब मैं हटा दिया, तो बड़ा आसान सा बात है, नेगेटिव तो ये अर्थ जो है ये खा गया, देयर इज नथिंग इन इट. ओके, सो देयरफॉर देयर इज नो नेगेटिव चार्ज. बच गई क्या, मेरे पास केवल पॉजिटिव चार्ज, कलेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज. हटा दो इस रॉड को जिसको आपने लगाया था, एंड यू रिमूव्ड दैट एंड यू गेट योर रिजल्ट विच इज नेगेटिव, सॉरी विच इज पॉजिटिव. लेकिन सपोज मैं आपको एक होमवर्क में बोला कि जस्ट इमेजिन मुझे यहाँ ऐसा ना नेगेटिव चाहिए, क्या करोगे आप, राइट? सो ये आप नेक्स्ट वीडियो में मुझे बताना कि क्या करना है आपको इसमें, राइट? बट फॉर द टाइम बीइंग यू जस्ट रिमेंबर दीज 4 फिगर्स, एंड दिस 4 फिगर्स बेसिकली टेल्स यू किसी भी ऑब्जेक्ट को हम नेगेटिव कैसे बना दें, किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पॉजिटिवली चार्ज्ड कैसे बना दें. सो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज बनाने का एक सिंपल सिनेरियो ये वाली है, राइट?
You can refer to the same figure. Some of the books prefer this one also. Some of the book prefer this one. At the same figure, you can refer to our notes also, right? Now look at this. ये एक arrangement है, right? You will find most of the books, most of the standard books में ये arrangement मिलेगी आपको, right? If you look at this arrangement, you will find बड़ा simple तरीके से, right? दो sphere uncharged टच करके रख दिया. अब बोलोगे सर आपने तो अभी बोला था इंडक्शन में टच नहीं कर सकते हम. बिल्कुल बोला था, अभी भी बोल रहा हूं. किसकी टच नहीं करनी है? चार्जेस को. पॉजिटिव नेगेटिव को नहीं छूनी है. आप जिसको ला रहे हो उसको टच नहीं करना है. नेक्स्ट फिगर देखो, एवरीथिंग विल बी क्लियर. यू सी, लुक एट दिस पॉजिटिव एंड लुक एट दिस नेगेटिव एंड यू विल फाइंड क्या दिखेगा आपको कि ये दोनों हम टच नहीं कर रहे हैं. मिटा देता हूं मैं. ये दोनों आप टच नहीं कर रहे हैं. जस्ट हैव ए लुक. ये देखो आप छू नहीं रहे हैं इन दोनों को. तो ये बोल रहा था मैं, कभी छूना नहीं. चार्जेस जिसमें है उसको मत छूना. सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज अ सिंगल बॉडी. ये जो बॉडी है, ये पूरी जो चीज है, ये एक बॉडी कंसिडर कीजिए. ओके, सो लेट्स कम बैक. ओके, सो इफ यू कम बैक देन लुक एट दिस सेकंड फिगर. मैंने इसको पॉजिटिव लाया, तो पॉजिटिव लाया तो डेफिनेटली दिस विल बी नेगेटिव एंड दिस विल बी पॉजिटिव, ऑपोजिट, राइट? ये देखो आप फिगर बी. नाउ फिगर सी. फिगर सी में दोनों स्फीयर को अलग अलग कर दिया. देखो आप, देयर इज अ गैप बिटवीन देम. लुक एट द एरो, लुक एट द एरो, सॉरी, लुक एट द एरो, लुक एट दिस. देयर इज अ गैप बिटवीन द टू स्फीयर्स एंड एज अ रिजल्ट पॉजिटिव और नेगेटिव में थोड़ी सी गैप कर दिया, अलग अलग कर दिया. सिंपल सी बात है. जैसे ही अलग अलग कर दिया तो आपको अभी मैंने बताया था ये नेगेटिव थे और ये पॉजिटिव थे, राइट? सो दिस इज नेगेटिव एंड दिस इज पॉजिटिव. सो नेगेटिव अलग हो गई, पॉजिटिव अलग हो गई. सो दिस बिकम्स माई नेगेटिव एंड दिस बिकम्स माई पॉजिटिव. सो दोनों बिल्कुल अलग अलग हो गई, पॉजिटिव अलग, नेगेटिव अलग. तो आप देखो इस अरेंजमेंट में आपने देखा आज कि स्फीयर को पॉजिटिव नेगेटिव भी बना सकते हैं. तो पिछले वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया था और होमवर्क भी दिया था कि देखिए आप कैसे, जैसे आपने यहाँ पे पॉजिटिव लिया है, आपने कैसे नेगेटिव बनानी है. दैट वाज माय होमवर्क एंड आई टोल्ड यू हाउ यू गेट अ पॉजिटिव. ओनली पॉजिटिव यू आर गेटिंग इन दिस एक्सपेरिमेंट. लेकिन इसमें आपने क्या देखा, इन दिस एग्जाम्पल आपने देखा कि मैं पॉजिटिव भी बना रहा हूं और नेगेटिव भी बना रहा हूं, बोथ. तो एक बड़ा पॉपुलर सा क्वेश्चन बनती है यहाँ पे आपकी, एंड दैट पॉपुलर क्वेश्चन इज कि प्लीज एक्सप्लेन हाउ डू यू एक्सपेरिमेंटली जस्टिफाई, राइट, बाय एक्सपेरिमेंट जस्टिफाई स्फीयर्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड और नेगेटिवली चार्ज्ड, राइट? सो दिस इज हाउ यू प्रोड्यूस द जस्टिफिकेशन कि देखो पॉजिटिव ऐसे होती है, नेगेटिव ऐसे होती हैं, इंडक्शन होती हैं, दूर से ले आते हैं, टच नहीं करनी है, एंड सो ऑन. ये थोड़ी सी मैं इंग्लिश में थोड़ा सा लिख के रखा हूँ मैं आपको, राइट? कि देखिए कि अगर दो को लाते हैं, इंडक्शन करते हैं तो फिर अलग अलग कर देते हैं एंड ऑल दिस थिंग, राइट? यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज स्टेटमेंट्स. ओके, फाइन. सो ये एक छोटी सी स्टोरी थी, राइट? एंड दिस स्टोरी बेसिकली टेल्स यू कि हाउ, राइट, द इलेक्ट्रिकल चार्जेस, राइट, हम बनाते हैं. क्योंकि जब तक आपकी इलेक्ट्रिकल चार्ज नहीं होगी, प्लस नहीं होगी, माइनस नहीं होगी, फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर सकती है. फोर्स नहीं है तो फील्ड नहीं है, फील्ड नहीं है तो फिर फ्लक्स भी नहीं है, एंड मोर ओवर पोटेंशियल नहीं है. तो फोर्स चाहिए मुझे, चार्ज चाहिए मुझे. सो फर्स्ट थिंग इज द चार्ज. सो इन दिस सेशन, पहले वाले सेशन में वी हैव जस्ट सीन कि कैसे हम इंडिविजुअल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज को जनरेट करते हैं, एंड दिस इज व्हाट इज द प्रेजेंट सिनेरियो. ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? हमारे सारे नोट्स हमारे वेबसाइट में अवेलेबल है, राइट? जस्ट विजिट आवर वेबसाइट, और वेबसाइट में जाके आप सारे नोट्स वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं. थैंक यू फ्रेंड्स.